गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस एथिक्स के बारे में। तो बिजनेस एथिक्स होता क्या है कि मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ते हैं सिर्फ ओनली फॉर बिजनेस एथिक्स। तो एथिक्स आर द डिजायर फ्रॉम द sorry ethics are the desire form of behavior set up by society to guide us on what is wrong and what is right। तो क्या हुआ, एक गाइड होता है कि एक तरीके से एक रूल्स कि भैया सोसाइटी के अकॉर्डिंग कि क्या सही है और क्या गलत है। इन दोनों के को ही हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से हमारा बिजनेस एथिक्स। कि बिजनेस एथिक्स मीन्स हो क्या, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। और बिजनेस एथिक्स, बिजनेस के अंदर क्या सही है और क्या गलत है, ये हम हमारी बिजनेस एथिक्स को से समझेंगे। पढ़ते हैं हम लोग। तो बिजनेस एथिक्स, तो एथिक्स इज कंसर्न विथ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर, जो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंडक्ट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल as approved by society in a particular field of activity। तो business ethics concern itself with the relationship between the business object, practice and tactics and good of society। Business ethics refer to the socially determined moral principle which should govern business activities। Ethical business is good business। Ethical business behavior improve public image, earn people's confidence and trust and lead to great success। सो बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या हुआ भाई, व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ गुड, कि क्या सही है क्या गलत है वो कौन जज कर रहा है, आपकी सोसाइटी जज कर रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना, एक अच्छा रिलेशनशिप बना के चलना, आपको एथिकली काम करना। अनएथिकल काम करेंगे तो आपकी रेपुटेशन और बिजनेस की रेपुटेशन पूरी ही समाप्त हो जाएगी। लॉ एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन है। इट मीन्स दैट द बिजनेस मैन शुड बी कॉम्पिटेंट enough to rank and identify the ethical issues in order to importance evaluations। It means that businessmen must develop the rules and regulation in order to evaluate the ethical issue of business imagination। A businessman should imaginative enough that he should think about the society before taking a decision about the business। He must be aware of the area towards which people are sensitive। Tolerance, businessmen must have the quality of tolerance, ethical disagreement, obligation, business decision taking process should be evaluated that it should fulfill the ethical obligation, competence, a businessman should be competent enough to integrate the business ethical issues with the ethical issues of the society, otherwise he has to pay the whole amount of the disagreement। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले भैया बिजनेसमैन को सोचना है कि कौन सा एरिया सेंसिटिव है, उस एरिया में क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगा। सो top management committee has a crucial role in the guiding the entire organization towards ethically upright behavior। They must give continued leadership for developing and uploading the values of the organization। Publication of a code that define the principle of conduct for the whole organization is the form of written document which is referred to as the code। This generally cover areas such as the fundamental honesty and adherence to law, product safety and quality, health and safety in the workplace, conflict of interest and employment practice। यानी कोड एक तरीके से आपके रूल्स रेगुलेशन, आपके बिजनेस के अंदर एक रूल्स रेगुलेशंस बन गए हैं। उसी रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ते हैं, टॉप लेवल का हो या मिडिल लेवल का हो। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल आपको बता सकते हैं, जैसे ऑफिस का टाइम, अगर मैंने आपको बोला आपको ऑफिस आना है तो ऑब्वियसली आपको ऑफिस आना है, लेकिन उसका कोई टाइम है। जैसे मैंने बोला आपको ऑफिस आना था, कोई कभी 10 बजे आ रहा है, कोई कभी 8 बजे आ रहा है, लेकिन एक टाइम हो जाता है भी 9 बजे ऑफिस आना, 10 बजे ऑफिस आना, तो हर व्यक्ति फिर 10 बजे ऑफिस आएगा। तो यही एक तरीके से रूल्स रेगुलेशन हो जाते हैं, हमारे एक बिजनेस के कोड हो जाते हैं जो सबको फॉलो करना है। वो बिजनेस की जो पॉलिसी हो जाती है ऑनेस्टली उनको सबको फॉलो करनी होती है। Establishment of compliance mechanism in order to ensure that actual decision and action compiled with the firm's ethical standard, suitable mechanism should be established involving employees at all levels। तो it is the employees that at different level who implement
ethics policy to the make ethical business is reality, therefore their involvement in ethics program become a must। कुछ लोग होते हैं वो एथिकली अपना काम करते हैं, ऐसे एम्प्लॉइज़ों का भी बिजनेस के हर प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सभी को एथिकल ही काम करने होते हैं। तो मेजरिंग रिजल्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू accurately measure the end result of ethics program. The firm can certainly audit the monitor compliance with the ethical standard. A top management team and other employees should then discuss the result of future courses of action। हमने अभी डिस्कस किया भैया एथिक्स के बारे में, डिस्कस किया बिजनेस एथिक्स क्या होती है, कुल मिला के एथिक्स क्या होती है, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इसमें आपको डिसीजन लेना है, क्या चीज़ सही होती है, क्या चीज़ गलत होती है। तो ये सब हमको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। आप कंट्रीज ऑफ द बिजनेस एथिक्स भी समझ सकते हैं कि बिजनेस एथिक्स इज़ अ कंटिन्यूस एंड डायनामिक्स फिलॉसफी। कंटिन्यूस एंड डायनामिक फिलॉसफी है, इट चैलेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमटेंसेस। तो सर्कमटेंसेस हिसाब से इसकी पॉलिसी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द मॉरल स्टैंडर्ड, किसके बेस्ड है हमारा ये मॉरल स्टैंडर्ड बेस्ड है। इट इज़ ऑल्सो इफेक्टेड बाय सोशल एंड कल्चर फैक्टर, सोशल एंड कल्चर फैक्टर भी इसको इफेक्ट करते हैं। बिजनेस एथिक्स इज अ ट्रेडिशनल एंड एंशियंट थॉट है। इट इज़ अ encouraged by social welfare, it is a universal concept, it is not enforced by law। लॉ के द्वारा कोई इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते भाई। अच्छा काम करना और ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अच्छा काम करना है या आपको बुरा काम करना है। इसके लिए लॉ तो आपको बोलेगा नहीं भाई कि आपको अच्छा बुरा काम करोगे तो फिर वहाँ पे आपका लॉ आप इम्प्लीमेंट हो जाएगा भाई। जिस बुरे काम का जो भी वहाँ पे प्रोविज़न है कि आपको इतनी उम्र की सज़ा होगी, ये होगा वो होगा, पेनल्टी जो भी होगी, पनिशमेंट होगा, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। It has one rules and regulation through which is the condition and govern, and it combines the legal as well as moral responsibilities। Every businessman is accepted to mold his behavior according to the need of the time। तो आई होप आपको बिजनेस एथिक्स समझ में आया होगा। तो सिंपल सा वर्ड है, व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ गुड। आपको आपकी लाइफ में क्या सही करना हो, क्या